So, students, in this video, we are going to start our the fourth chapter of the principle of marketing. So, before this video, again, we have discussed that what are the topics are available in this subject. Okay, I have already mentioned in the last video. So, in today, we are going to start directly the chapter one. Okay, that is principle of marketing introduction. So, in introduction part of this chapter, we are given the definition of marketing. Before discuss the principles of marketing, we need to discuss what is marketing. So, this definition you already got in HS final year, that what is marketing according to AMA. AMA means American Marketing Association. In the year of 2004, this association has given one definition to marketing in the sense of modern marketing. So here written that marketing is an organizational function and set of process for creating, communicating, and delivering value to customers. Means organizational function means in every organization this marketing function is used, or it is necessary, or it is a way by which they create the value of the customer. Okay, they give value to the customer. Again, they're communicating with the customer, and they also deliver the value to the customer whatever their needs and wants according to them. Okay, and by this way they are trying to make a relationship with the a customer in a proper manner, which is good for the organization, as well as it is also very beneficial for the stockholder. So this is all about defined by our AMA according to their definition of marketing. Okay, so after this definition, we are moving towards our next definition, that is called according to Kotler. Even there are so many management thinkers has given the definitions of marketing, but I am taking only one of them, that is Philip Kotler. He had written only Kotler. His full name is Philip Kotler. So in the year of 2000, he was given one definition of marketing, that is called societal process by which individuals and group obtain what they need and wants. Understood? It's a societal process according to Kotler, by which individual means a customer, any one individual customer or a group of a customer, they try to fulfill their needs and wants by creating some value, or by offering some goods, or and by exchanging products or service with the value of with others. Okay, because मतलब हम लोग सपोज़ मैं एक दुकान में हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपना प्रोडक्ट का एक इमेज क्रिएट करता हूँ, फिर उसको कस्टमर को मैं ऑफ़र करता हूँ, एंड आफ्टर दैट उसको मैं एक्सचेंज भी करता हूँ विद द कस्टमर्स। और उसी तरह जैसे चीज़ मैं एक्सचेंज करता हूँ, सर्विस भी एक्सचेंज किया जाता है, और सर्विस का भी एक लेवल होता है कि कितना अच्छा से सर्विस दे रहा है, तो जितना अच्छा से हम लोग देंगे उसका वैल्यू भी उसी से हम लोग मतलब जस्टिफाई करेंगे कि सर्विस कितना लेवल तक है, या फिर प्रोडक्ट किस लेवल तक है। So okay, so this is all about marketing from the side of Kotler. So हमने अभी तक दो डेफिनेशन पढ़ा, according to AMA and according to Kotler. Next move on करते हैं our next definition. मीन्स देर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि हो गया डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग गिवन इन टू वेज। वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, दैट मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट बनने से पहले स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एक मूवी रिलीज़ होने से पहले उसका ट्रेलर आ जाता है, उसको देखने के बाद मूवी को दिया जाता है हॉल में, फिर मूवी देखने के बाद उसका रिव्यू लिया जाता है, रिव्यू लेने के बाद उसको बोलते हैं फीडबैक। उसी तरह प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले एडवर्टाइज आ जाता है, ठीक है, एडवर्टाइज होने के बाद उसको लॉन्च किया जाता है, फिर उसका एक जो साइकिल है, प्रोडक्ट साइकिल बोलते हैं उसको धीरे धीरे वो डेवलप करता है, फिर एक दिन जाके वो गायब हो जाता है। और उसी साइकिल को मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो एक प्रोडक्ट साइकिल के अलावा मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक प्रोडक्ट का सेलिंग मार्केटिंग कैसे स्टार्ट होता है। सपोज़ एक प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट खरीदने से पहले एडवर्टाइज शुरू हो गया, एडवर्टाइज के बाद सेलिंग हो रहा है, उसके बाद उसका मतलब सब कुछ एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, प्राइसिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग, एवरीथिंग से लेके एकदम लास्ट में जब तक प्रोडक्ट का मतलब वारंटी गारंटी जब तक है, तब तक मार्केटिंग चलता रहता है। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल तो ये भी बोलता है कि एक प्रोडक्ट कैसे मतलब फर्स्ट डे से लेकर लास्ट तक कंज्यूमर, जैसे कि प्रोडक्ट बनता है एक जगह में,
ठीक है। रॉ मटेरियल हम दूसरे से ख़रीद के लाए तो वहाँ से पकड़ना पड़ेगा। रॉ मटेरियल दूसरी जगह से ख़रीद के लाने के बाद उसको हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्ट के कन्वर्ट करने के बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं या फिर एजेंट को देते हैं, वो फिर होलसेलर को देता है, होलसेलर कभी कभी फिर री होलसेलर को देता है, फिर उससे रिटेलर, फिर कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर के बाद एट लास्ट जाके वारंटी गारंटी चलता ही रहता है उसका। सो अल्टीमेटली कैसे में एक प्रोडक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक एक कंज्यूमर तक पहुंचता है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, कैसे उसका यूज़र तक कैसे पहुंचता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, अगर मैं बोलता रहूँगा तो 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं थोड़ा एक समरी दिया हूँ व्हाट इज़ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली दैट activity through which goods and services directly move from producers to consumers or users, that is called marketing according to traditional concept. So second में हम लोग चलते हैं the modern concept of marketing. So according to this modern concept of marketing, इसमें एक्सप्रेस क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट सेक्टर का अपना एक गोल होता है, ठीक है। उस गोल को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द फर्स्ट मेन थिंग इज़ दैट वी नीड टू फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर इन ए प्रॉपर मैन। कंपटीशन तो है ही मार्केट में, कंपटीशन के करते करते अगर हम लोग कस्टमर को ही मतलब कंपटीशन का मतलब पार्ट बना ले तो अल्टीमेटली वी लूज आवर बिजनेस। सो द कस्टमर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द कंपटीशन। वी नीड टू गिव बेटर एंड बेटर सर्विस, अच्छा से अच्छा सर्विस, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हमको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए कस्टमर को, या फिर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स वी नीड टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू देम। So this is called modern concept of marketing, by which they try to fulfill the goal of the organization according by fulfilling the needs and wants of the customer. Okay, so this is the simple description about the traditional concept and modern concept of marketing. So अभी हम लोग चलते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मार्केटिंग। इन शॉर्ट में तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि मार्केटिंग का फीचर है या फिर नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है नेचर है। बट दिस नेचर्स आर बेस्ड ऑन मॉडर्न मार्केटिंग, ठीक है। मॉडर्न हम लोग ट्रेडिशनल डिस्कस नहीं करेंगे, बेस्ड ऑन मॉडर्न मार्केटिंग मतलब नेचर क्या क्या आता है उसको हम लोग एक बैग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने अभी डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग का डिस्कस किया है। हाँ, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक में ये नेचर स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूँ, अगर किसी भी मतलब टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट हो तो तुम लोग पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और कुछ भी व्हाट्सएप या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स बाय सेंडिंग मी योर क्वेरीज। ओके, सो नेक्स्ट वी स्टार्ट द नेचर ऑफ मार्केटिंग। देर आर सो मेनी नेचर्स ऑफ मार्केटिंग, अगर डिस्कस करो तो 50-60 निकल के आएगा, बट आउट ऑफ दैट 50 or 100 आई चूज़ ओनली 10 which are very according to me or according to your syllabus it is very crucial to discuss about this nature of marketing जो कॉमन है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। मैंने पहले बोला था ये मार्केटिंग जो है ये आदमी को, वी आर गोइंग टू सेटिस्फाइड आवर कस्टमर। कस्टमर कौन है? ह्यूमन है। और सेटिस्फाई कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर और होलसेलर। तो वो लोग कौन है? ह्यूमन। सो ह्यूमन ही ह्यूमन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वन ह्यूमन इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई और फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द अनदर ह्यूमन। So ultimately this activity whatever going on, everything is going on by the effort of some human, um, um, by the effort of some human being. So this activity whatever going on in marketing, these all are called human activity. Okay, सारा आदमी को लेके काम चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसको ह्यूमन एक्टिविटी बोलेंगे। फर्स्ट नेचर। सेकेंड नेचर में अगर जाए, यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड दोनों मैंने मतलब मेंशन किया है, पहले हम सेकेंड वाला डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड में यहाँ पे बोला है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो मार्केटिंग में हम लोग जो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि दे ट्राई टू फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सो नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर और कंज्यूमर मीन्स व्हाट? वी आर ट्राइंग टू फुलफिल means we are trying to give better and better service, better product to our customers। तो इसका मतलब है कंज्यूमर ओरिएंटेड। जो भी हम लोग मार्केटिंग में कर रहे हैं वो कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही कर रहे हैं। सो डेट इज़ कॉल्ड ओनली बिकॉज ऑफ टू सेटिस्फाई द कस्टमर और टू गिव ए प्रॉपर प्रॉफिट टू आवर कस्टमर मीन्स बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट जो है, रीजनेबल प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सो दिस ऑल आर बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड। हम लोगों को मार्केटिंग फंक्शन में हम लोग मेनली हमको क्या मतलब एज ए प्रोड्यूसर और होलसेलर हम क्या चाहते हैं, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ दैट व्हाट द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स।
ओके। तो थर्ड में लिखा है आर्ट्स एज वेल एज साइंस। तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैनेजमेंट आर्ट एज वेल एज साइंस, तो यहाँ पे मार्केटिंग भी आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो मार्केटिंग में बहुत सारा प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ रहे, देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स आर अवेलेबल फ्रॉम मार्केटिंग फंक्शन। ओके, so all principles are written after so many experiment, after so many observation in the real field of our market। सो उसको लिखने के बाद ही वो सब प्रिंसिपल बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं थ्योरी। जो प्रिंसिपल बनाया गया है उसी का ऊपर बेस करके हम लोग प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो जब कोई थ्योरी के ऊपर बेस करके हम लोग प्रैक्टिकली इसके अप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट भी अकॉर्डिंग टू थ्योरी में जो लिखा हुआ है वैसे वही रिजल्ट मुझे फिर से मिल रहा है। सो डेट इज़ कॉल, ये साइंस भी है और अदर तरफ से देखा तो ये आर्ट भी है। आर्ट जो थियोरेटिकल नॉलेज है, प्लस साइंस जो उसको हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आजकल होम डिलीवरी दे रहे हैं, फिर जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग है, फिर क्रिएटिंग है, डिलीवरिंग है, या फिर हम लोग कस्टमर से बार बार कॉल करके फीडबैक भी ले सकते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। सो ये सारा टेक्निक जो है मार्केटिंग का अंदर ही आता है। सो दीज आर कॉल साइंस विच आर थियोरिकली हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट साइंस ये भी बोलता है, वे थ्योरी और साइंस दोनों मिलकर देखा तो साइंस ये भी बोलता है द प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल द राइट टाइम। अगर शादी के लिए कुछ प्रोडक्ट मंगाया, शादी ख़त्म हुआ उसके बाद आएगा तो काम थोड़े होगा। सो अल्टीमेटली ऑन द राइट टाइम प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल, और जहाँ पे चाहिए वहीं पे चाहिए। अगर मेरा शादी है यहाँ में और मैं सामान मंगा लिया दूसरा जगह, तो ये नहीं होगा ना। सो नेक्स्ट वन इसको इन द राइट हैंड, जिसको पास देना है उसी के पास देना है। मेरा घर में नहीं जाके दूसरा का घर में दे दिया, ये भी एक रॉन्ग है। राइट क्वालिटी, जितना जो मैंने मांगा था वही दिया, उसके साथ दूसरा क्वालिटी नहीं दिया। एंड नेक्स्ट इन द राइट फॉर्म, जैसे मांगा था वैसे ही दिया। ओके, सपोज मैं 1000 पीस मांगा था 1000 पीस ही दिया। एंड राइट प्राइस, जो प्राइस मैंने बोला था उसी तरह प्राइसेस। तो ये जो है लिखा है दीज आर टेक्निक्स मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट हैंड, राइट क्वालिटी, राइट फ्रॉम राइट प्लेस। तो ये सब जो है एक मार्केटिंग का पार्ट ही है, जो थियोरिकली एंड प्रैक्टिकली इन बोथ वे वी आर means doing in our marketing function. So by this way we can say that marketing is science as well as art, or art as well as science. Okay, तो यहाँ तक समझ में आया? अगर कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो तुम लोग क्लियर कर लेना मुझे कॉल करके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, डेट इज़ कॉल नंबर 4 and 5, एक्सचेंज प्रोसेस एंड स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कस्टमर। देखो मार्केटिंग जो है ना, मैंने पहले बोला था एकदम प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और फीडबैक तक चलता रहता है, या फिर वारंटी गारंटी तक चलता रहता है। तो वारंटी गारंटी जो भी सामान हम लोग प्रोड्यूसर से देखो एक्सचेंज हो रहा है, कैसे प्रोड्यूसर से आ रहा है होलसेलर के पास, तो उसने एक्सचेंज किया, होलसेलर ने फिर रिटेलर के साथ एक्सचेंज किया, रिटेलर ने फिर कंज्यूमर के साथ एक्सचेंज किया। तो उसी तरह एक दूसरे के साथ वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं और मनी भी उसी तरह एक्सचेंज हो रहा है। सो इसके इन दिस एक्सचेंज सिस्टम देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजी, सो मेनी टेक्निक्स आर यूज्ड। सो अल्टीमेटली सारा काम एक्सचेंज से ही चल रहा है, बायर टू सेलर। सो इट इज़ कॉल्ड मीन्स इन शॉर्ट, होलसेलर के लिए होलसेलर जो है प्रोड्यूसर के लिए बायर है, फिर रिटेलर जो है होलसेलर के लिए बायर है, फिर कंज्यूमर जो है रिटेलर के लिए बायर है। सो एवरीवन इज समवन फॉर समवन ही इज़ बायर एंड फॉर समवन ही इज़ सेलर। सो अल्टीमेटली दिस एक्सचेंज टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग बिटवीन टू पार्टीज। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सचेंज प्रोसेस। सारा मार्केटिंग जो है एक्सचेंज पे ही चलता है। थर्ड वन इज़ नो 5 इज़ कॉल्ड स्टार्ट्स एंड एंड विद द कस्टमर। मैंने पहले ही बोला था ना, उसके जो होलसेलर है, सॉरी जो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर है, और उसके लिए हो गया तुम्हारा होलसेलर कस्टमर, होलसेलर के लिए रिटेलर कस्टमर, रिटेलर के लिए हमारा कंज्यूमर जो है वो फाइनल कंज्यूमर होगा। सो एक के लिए दूसरा जो कस्टमर बनते जाता है। सो स्टार्ट भी कस्टमर से होता है और एंडिंग भी कस्टमर से आता है, और फीडबैक भी उस होने के बाद जो कंप्लेन आता है उसको भी हम लोग हैंडल करते हैं। तो उसको भी कस्टमर जो दिया है कंप्लेन उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो अल्टीमेटली जब वो रिजॉल्व हो जाता है तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड होता है। सो सारा चीज़ जो है कस्टमर से लेके स्टार्ट होता है और कस्टमर को लेके फिनिश होता है। जैसे कि मैंने बोला था ना, दैट मार्केटिंग प्रोसेस कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड मीन्स व्हाट? बेस्ड ऑन कस्टमर्स। सो स्टार्ट्स विद द कस्टमर एंड एंड्स विद द कस्टमर। समझ में आया? सो यहाँ तक आई थिंक ये इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, तुम लोग समझ जाओगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारा अलग स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, डेट इज़ कॉल क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। देखो प्रोडक्ट दुनिया में इतना सारा यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है ना। जैसे कि पहले देखो कुआं का पानी खाता था, फिर फ्रिज बन गया, तो कुआं से भी ज़्यादा ठंडा पानी निकल गया, तो फ्रिज जो ये यूटिलिटी क्रिएट करता है कि चाहिए एक तो घर में, तो सामान को बहुत देर तक ठीक रखता है, ठीक है। फिर
हो गया वॉशिंग मशीन, पहले कपड़ा कितना कष्टों से धोना पड़ता है, जैसे वॉशिंग मशीन बना तो कपड़ा धोना ईजी हो गया। तो उसी तरह फ़ैन, हमको कितना गर्मी लगा, ऊपर से पंखा चला दो तो हमारा ठंडा लगने लगता है। फिर एसी, इसको फ़ैन से भी ज़्यादा फैसिलिटी है, तो तुमको विंटर का जो मतलब क्या होता है ना क्लाइमेट, उसका भी तुम मज़ा ले सकता है समर में बाय इंस्टॉलिंग एसी। सो ऐसे है जो मार्केटिंग फंक्शन जो है ये मतलब यूटिलिटी का यूटिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, इस तरह के इतना आदमी को चीज़ करता है, ढेर सारा सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद आजकल जो ऑनलाइन कैसे होता है, तो पहले हम लोग को कुछ सामान लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, अभी घर में हमारा सारा सामान आगे पहुंच जाता है। सो अल्टीमेटली ये भी एक यूटिलिटी हो गया। ठीक है, पहले बहुत सारा सामान हमको घर में ले जाके ठीक है वो करके हम तो पेस्ट वेस्ट करके फिर उसको यूज़ करना पड़ता है। आजकल सब कुछ रेडीमेड मिल गया है। तो इस तरह डे बाय डे दे आर ट्राइंग टू सेटिस्फाइड मोर एंड मोर कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स का डिमांड फुलफ़िल करने के लिए, कस्टमर्स का डिमांड फुलफ़िल करने के लिए मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट मतलब यूटिलिटी जो है क्रिएट करता जा रहा है और कस्टमर भी उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। अंडरस्टूड? कस्टमर का जो नीड्स एंड वांट्स है वो फुलफिल करता है मार्केटिंग। सो इसी तरह वो लोग यूटिलिटी क्रिएट करता है। नंबर 7 इज कॉल गोल ओरिएंटेड। जो भी मार्केटिंग कर रहा है, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कॉलेज हो, जो हो, कुछ भी कर रहा है, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन मतलब जो भी फंक्शन हो गोल पे ही बेस्ड होता है। तो मार्केटिंग भी एक फंक्शन है, उस फंक्शन भी गोल पे ही बेस्ड है। ठीक है, सो मार्केटिंग जो है बेसिकली हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड, बट कंज्यूमर ओरिएंटेड क्या है, जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो अल्टीमेटली अगर उसका अपोजिट देखे तो तभी जाकर बायर का भी प्रॉफिट होगा। सो दीज आर बेनिफिशियल फॉर बायर एज वेल एज सेलर्स। ओके, बायर से सेलर जो है बायर्स को सेटिस्फाई करता है और बायर भी बायर्स का भी जो डिमांड्स है वो सेलर उसको फुलफ़िल करके देता है। तो इसी तरह एक दे बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर एंड बोथ आर ट्राइंग टू गिव सेटिस्फैक्शन टू ईच अदर। सो इस तरह एक गोल जो होता है हमारा, सपोज़ हमारा प्रॉफिट अर्निंग एक गोल है। सो जब हम लोग सेटिस्फाइड करते हैं कस्टमर से तो कस्टमर भी खुश होता है और हमसे सामान खरीदता रहता है। सो अल्टीमेटली हमारा जो प्रॉफिट है दिन ब दिन बढ़ता रहता है। सपोज़ मैंने गोल ओरिएंटेड जो मेरा गोल है कंपनी का, और गोल मैंने प्रॉफिट मेकिंग सेट किया, तो अल्टीमेटली जब मैं प्रॉपर्ली मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। सो अल्टीमेटली मार्केटिंग ऑल्सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, विदाउट गोल कोई भी फंक्शन काम नहीं करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएशन ऑफ रिलेटिव्स एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है यहाँ पे देखो नंबर 8 में गाइडलाइंस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, गाइडिंग एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। तो मार्केटिंग जो है वो एक तरह का गाइड का काम करता है। मैंने बोला प्रिंसिपल्स, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, प्रिंसिपल्स मीन्स गाइडलाइंस होते हैं, स्टेटमेंट होता है कुछ जो हमको गाइड करता है काम करने के लिए। तो इसी तरह मार्केटिंग फंक्शन जो है तो एक तरह का गाइडलाइन काम करता है फॉर बिजनेसमैन। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे गाइड करता है, कहाँ पे भेजना है, किसको भेजना है, कैसे बनाना है। ठीक है, कहाँ पे भेजना है, कितना क्वांटिटी भेजना है, क्वालिटी क्या होना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, सब कुछ वो गाइड करता है अकॉर्डिंग टू सेटिंग प्लान। सो अल्टीमेटली इट्स गाइडिंग एलिमेंट्स फॉर अ बिजनेस। मार्केटिंग इज़ अ गाइडिंग एलिमेंट फॉर अ बिजनेस। इन मॉडर्न मार्केटिंग इज़ वेरी important. Okay, number 9 is called system of interacting business activities. There are so many activities we need to do in business, not only marketing. Except marketing, there are so many things we need to do in business. So all functions are interacted with the marketing. ठीक है, देखो मैं थोड़ा एग्जांपल मैं कब से बता रहा हूँ कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कंज्यूमर को कौन मेनली इंटरेक्ट कराता है, मार्केटिंग कराता है। ठीक है, फिर कंज्यूमर और जो सेलर है उसका बीच में कौन इंटरेक्ट कराता है, मार्केटिंग कराता है। ठीक है, सो एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन द कस्टमर एंड मैनेजमेंट। ओके, एंड इसके अलावा भी ढेर सारा फंक्शन है, उस सब में भी मार्केटिंग एक दूसरे का मतलब इंटरेक्ट करके चलता है। ठीक है, जैसे कि हो गया फ्लो ऑफ गुड्स। एक प्रोडक्ट एक जगह में, सपोज़ मैं पकड़ लेता हूँ आटा जो खेती है एक जगह में हो रहा है, वहाँ से फिर आएगा, फिर प्रोड्यूसर से आएगा होलसेलर के पास, फिर आएगा रिटेलर के पास, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंज्यूमर के पास। सो इस तरह और भी लंबा चेन होता है कभी कभी। तो इस तरह क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कराता है, कौन कराता है, मार्केटिंग।
So system of interacting business activities, it is the another nature of marketing. Okay, next one is called marketing is a dynamic process. Dynamic means तुम लोगों को तो पता ही है, which is acceptable or which is required in everywhere, और जो हर जगह में होता है उसको बोलते हैं डायनामिक. सो यहाँ पे लगा है मार्केट इंटर रिलेटेड फंक्शन. ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे. ठीक है, कैसे एक दूसरे का फंक्शन एक के बाद एक आता है मार्केटिंग का. तो यहाँ पे लिखा है कि इट्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, जैसे कि हो गया एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, ऐसा कुछ होता है, होल सेलिंग, रिटेलिंग, ये सारा जो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है. तो एक दूसरे के बाद ही होता है सिस्टमेटिकली. तो ये वेरी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा होता है. तो कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो उसका लॉस भी तुमको ही भुगतना पड़ेगा. सो मार्केटिंग इज़ ए डायनामिक प्रोसेस जो कंटिन्यूसली चलता रहता है. एक बार ख़त्म हुआ फिर नेक्स्ट काम स्टार्ट हो गया, पहला काम ख़त्म हुआ सेकंड स्टार्ट हो गया, सेकंड हो गया थर्ड स्टार्ट हो गया, इसके बाद एक दूसरे का काम स्टार्ट होता है, ख़त्म होता है. ठीक है, और एक फंक्शन जो है दूसरा से रिलेटेड होता है. ये मैंने पहले भी बताया है व्हाट इज़ इंटर रिलेटेड प्रोसेस. सो इस तरह मार्केटिंग को हम डायनामिक बोल सकते हैं, जो हर एक्टिविटी में हमको दिखाई पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हमको प्लान करना पड़ता है. जहाँ पे प्लान है वहाँ पे कंटिन्यूसली कंट्रोल भी करना पड़ेगा, और जहाँ पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है उस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको कैसे सुपरवाइज करती है, सारा एक्टिविटी जो है मार्केटिंग मतलब इन्वॉल्व करता है अपना फंक्शन का अंडर में. सो अल्टीमेटली मार्केटिंग इज़ ए डायनामिक process. So student, in this audio presentation I have discussed 10 nature of marketing principles, or you can say that 10 nature of marketing function. सो यहाँ में अगर तुम लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी. यहाँ पे देखो कंक्लूजन में मैं बोलना चाहता हूँ. तो ये जो है मैं एक्चुअली प्रॉपरली डिस्कशन के लिए फेस टू फेस होना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे तुम लोग मैं जब बोल रहा हूँ तो कुछ भी डाउट हो तो तुम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं. बट इन ऑडियो प्रेजेंटेशन द प्रॉब्लम इज़ दैट मैं तुम लोग को बोल सकता हूँ बट तुम लोग को उसका रिप्लाई नहीं. तो एक काम करना, वीडियो को अच्छे से देखना. ठीक है, देखने के बाद कुछ भी डाउट हो तो पूछना. और आज मैं तुमको आई एम नॉट श्योर बट शायद 2 या 3 वीडियो एक साथ भेजूँगा, बिकॉज कोर्स इज़ वेरी वास्ट एंड टाइम इज़ वेरी शॉर्ट. तो पहले तो हर रोज़ एक क्लास लेते हैं. आई थिंक 6 डे में 6 क्लास तो लेते ही थे. तो अभी वीकली 2 क्लासेस ही मिलेंगे, तो इट्स नॉट ईजी टू कवर अप एवरीथिंग. सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कवर अप एवरीथिंग. और अभी जो मैंने दिया है उसी को तुम लोग नोट भी बना सकता है बाय राइटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड अगेन द नेचर ऑफ मार्केटिंग. ये दोनों क्वेश्चन तुम बना सकते हैं. और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा क्वेश्चंस मैं तुमको दूंगा. तो मैं जितना भी वीडियो भेजूँ उसके बाद क्वेश्चन दूंगा. जो भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का ऊपर ही बेस करेगा. तुम लोग इसी से देख के लिख के मुझे उसी दिन मुझे वापस करना पड़ेगा. ठीक है, अगर वापस करते तो आई विल गिव यू अटेंडेंस, और नहीं करते तो यू विल बी एब्सेंट फॉर दैट डे. ओके स्टूडेंट, सो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ. अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो योर क्वेरीज एंड योर कंफ्यूजन मीन्स डाउट्स आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच.